नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ashishsirAshish. This is Srimad Välmiki-Rāmāyaṇa original Sri Ram Katha, narrated by Sri Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो। This is episode number 17 and this is original Sri Välmiki-Rāmāyaṇa original Sri Ram Katha published by Gita Press, Gorakhpur. It is in English as well as in Hindi. All episode link of this Ramayana and Gujarati Ramayana, Valmiki and Hindi Ramayana is already given into the description. So we explain this Ramayana in English for our new generation and with Hindi explanation to followers of Bhagwan Sri Ram. Many sampradaya in our Gujarat and any country, the Angrez, the Britishers, and they give a benefit to other sampradaya which tell that Ram, Lakshman, Krishna are not a bright and God, सर्वोपरि अलग है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो अंग्रेज़ों को हमारे भारत पे राज करना था, तो उनको ऐसे धर्मों की तलाश थी जो राम को छुड़ाए, लक्ष्मण को छुड़ाए और श्री कृष्ण को छुड़ाए। तो ऐसे धर्मों को प्रोत्साहन, ऐसे संप्रदायों को प्रोत्साहन दिया गया जिससे हम हमारी रामायण को भूल जाए। आज हम देख रहे हैं इसका इफेक्ट ऑफ इन 200 years nobody have Valmiki-Rāmāyaṇa in our home. So it is first necessity for every Sanatan Hindu that must buy at least one copy of Valmiki-Rāmāyaṇa in home, and on your birthday or on any death occasion or any occasion or your marriage occasion, you give a Valmiki-Rāmāyaṇa to peoples. Please do this thing. Okay, thank you. So let's we start the episode number 17 Valmiki-Rāmāyaṇa Canto number 23 यानी कि सर्ग 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। लेट्स स्टार्ट। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। नाइट लॉन्ग सोजोर्न ऑफ श्री राम एंड लक्ष्मण विथ विश्वामित्र इन होली hermitage at the confluence of गंगा एंड द सरयू। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनको और पत्तों के बिछोने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स वंशी राजकुमारों से कहा, द नाइट हैविंग ऑल बट culminated in the dawn, the great sage Vishwamitra spoke as follows to Sri Ram and the Lakshman, the two sons of Kakutsa, lying on the bed of dry leaves and mixed with the straws. हे नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है
उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्य को पूर्ण करो। कौशल्या is blessed with the worthy son in you, O Ram. The morning twinkling has set in, therefore get up, O tiger among the men. Contemplation on the deity and the daily routine of duties making for the purification of the body have to be gone through. महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। Hearing the exceedingly gentle admonition of the celebrated sage Vishwamitra, the two heroes, Sri Ram and the Lakshman, the foremost among men, performed their ablutions, and having offered oblations of water to the sun god, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, method the most scared text of the Gayatri, न गायत्राय परम जाप्यम, other than which there is no holier text। तो गायत्री मंत्र से सबसे पवित्र जो टैक्स है उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। उससे पवित्र कोई टैक्स इस पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है, ऐसा विश्वामित्र कहते हैं। तो हर दिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य सबको करना ही चाहिए। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहाँ से आगे जाने को उद्यत हो गए हैं। Having concluded their morning devotions, the Sandhya prayers, Brahma Yajna, reaction of portion of the Vedas and the other sacred texts as in offering to the race, forming part of the 5 major Yojanas, fetching pieces of woods for beginning offered to the sacred fire and so on, and saluting Vishwamitra rich in the asceticism and two exponentially valiant Prince Sri Ram and the Lakshman felt extremely delighted and stood before the latter ready to proceed further. संगम के जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। गंगा मैया की जय हो। While the moving onward from the spot where they had broken their journey overnight, the two very mighty prince sighted the divine river Ganga, which flows through heaven, earth, and the subterranean region, and thus take a therefold course near its well-known and blessed confluence with the Sarayu। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। There they further beheld the holy site on the hermitage of the rishi of purified mind that had been practicing the highest form of the asceticism for the past many thousands of years। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही। Supremely delighted to behold that scared
abode of hermites, Sri Ram and the Lakshman, the two seasons of Raghu, addressed the following prayer to the celebrated Vishwamitra of noble mind. भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है? जैसे बच्चों को होता है ना कि ये क्या है, वो क्या है, पूछते रहते हैं ना। जैसे राम भगवान भी विश्वामित्र को पूछते हैं, हे भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा हुई है। Whose holy hermitage is this? What personage, we ask you, dwells in it? We both desire to hear this, for great is our curiosity in this behalf, O venerable sir. उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। Hearing the aforesaid submission of two brothers, Vishwamitra, the foremost of hermits, heartily laughed and said, Hear, O Ram, of two whose former residence this is. विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दोनों भगवान स्थाणु यानी कि शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उड़कर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोक दिया। कंदर्प, द गॉड ऑफ लव, यानी कि कामदेव, who is also spoken of by the wise as Kam, Cupid, was endowed with a living form in the past. On one occasion, the foolish fellow was bold enough to assail with the shaft of love Lord Shiva, the suzerain lord of the gods, who had been performing austerities in the very hermitage and remained uninterruptedly absorbed in deep meditation. While he was, after having married, going out along with the entire host of the 49 wind gods in order to meet the goddess Parvati, and love was thereupon snubbed with a roar in the form of the sound hum by the high solid Lord. रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसी के शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। He was further reproached by Lord Rudra, यानी कि शिव, the god of destruction, with his third eye, O season of Raghu, and lo, all the limbs of the evil-minded fellow dropped off from his body. वह दग्ध हुआ महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया था। It was on that occasion that the limb of the highly fellow, huggy fellow, consumed through the wrath of Lord Shiva, the suzerain lord of the gods, disappeared, and it was in this way the Kama was rendered bodiless. राम, तभी से यह अनंग नाम से विख्यात हुआ है। काम को दूसरा नाम क्या है? अनंग, जिसके अंग नहीं रहे। सभी अंग को जला दिया है भगवान शिव ने।
ये दूसरी बार भगवान शिव का उल्लेख हो रहा है रामायण में। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ है। जो अंग देश, जो महाभारत में भी उल्लेख आता है कि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया दुर्योधन ने। तो अंग देश क्या है? जहाँ अंग को अंग विहीन कर दिया था भगवान शिव ने काम को, दैट इज अंग देश कहलाता है। Then forwarded he come to be widely known by the name of Ananga, bodiless, O season of Rasgu, and the track of land where that glorious being said his embodied state become known as the Anga territory. So the tradition goes on. यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थाणु के, यानी कि शिव को स्थाणु भी बोलते हैं, रुद्र भी बोलते हैं, महादेव भी बोलते हैं, धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। These holy hermitages belong to him, and these Sega practicing austerities here present have been his disciples in the past. As such, they are devoted to pity, and no sin exists in them, O Ram. शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करेंगे। कल सवेरे इन्हें हम पार करेंगे। Let us halt for this night in the hermitage hemmed in by the two holy streams, O Ram, of handsome look. राम भगवान को क्या बोल रहे हैं? हैंडसम लुक है उनका, यानी कि शुभ दर्शन, जिसको गुजराती में हिंदी में शुभ दर्शन राम, हैंडसम लुक। टुमारो वी शैल क्रॉस द गंगा, कल हम गंगा को पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें, यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। हे नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया है। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य, अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया है। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। Let us all enter the holy hermitage when we are purified by bath, etc. Our sojourn here will be most welcome, and we shall happily spend the night here after we have bathed, muttered our prayer, and poured oblations into the scared fire. O dwell among the men while they were talking together as aforesaid. There outside in the hermitage the sages dwelling in the hermitage felt supremely delighted to discover their presence with their eyes that had attained a long-range clairvoyance through Ashish and experienced a thrill of joy. हर्ष का आनंद यानी thrill of joy, having offered to the Vishwamitra water to wash his hands and feet with the extending their
hospitality to him. They subsequently offered hospitality to Sri Ram and the Lakshmana, to having received attention in return from Vishwamitra as well as from the Sri Ram and the Lakshman. They regaled them with the anecdotes etc. तदंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचाया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। At dusk, when the day and night meets, the aforesaid rishi include Vishwamitra and his pupils, Sri Ram and Lakshmana muttered the Gayatri mantra according to their ability. The maximum jap that one is expected to do after his Sandhya prayers in 1000 repetitions. The moderate number is 100, while 10 is the irreducible minimum. यानी कि हमको 1000 बार जाप करना चाहिए, न हो सके तो 100 बार जाप करना चाहिए, पर एटलीस्ट 10 बार तो गायत्री मंत्र का जाप एटलीस्ट करना ही चाहिए हर रोज़ शाम को भगवान की पूजा के वक्त। जो हम बोलते हैं मंत्र होम भूर्भुवः स्वाहा, जो आपको पता है सबको मंत्र, जिसको गायत्री मंत्र बोलते हैं, हर रोज़ शाम को और सुबह को सूर्य भगवान को जल चढ़ाते वक्त भी गायत्री मंत्र का 10 बार जाप करना चाहिए, और शाम को पूजा के वक्त भी एटलीस्ट 10 बार या तो 100 बार या तो 1000 टाइम आपको गायत्री का जप करना ही चाहिए। जैसे पूरे दिन के हुए पाप को नष्ट करता है और पुण्य का भागीदार बनाता है, जिससे आप जीवन में सफल हो सकते हैं। यस, इट इज़ द 100% ट्रू फैक्ट, सो बिलीव दैट। सो गायत्री मंत्र अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, जैसी आपकी एबिलिटी हो, आप 10 कर सके, 100 कर सके, 100,000, जैसी आप जैसी जिसकी भावना और एबिलिटी होती है वैसा करना ही चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए। एंड विद द काम एंड कलेक्टेड माइंड टेकन, एक रामकृष्ण परमहंस की एक बात भी है कि जब उनके शिष्य ने एक व्यक्ति आए थे आश्रम में, उसको गायत्री मंत्र का जाप दिया, राम भगवान का नाम बोलने को, एक को 100 बार बोलने को बोला, दूसरे को भी 100 बार। तो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति अभी बहुत डेवलप नहीं है उसको 100 बार बोलना चाहिए, पर जो पूरी तरह आध्यात्मिक रूप से डेवलप है उसको एक बार भी राम का नाम बोल दे तो उसका कल्याण हो जाता है। यानी ऐसा नहीं कि हर एक को कितना प्यूरिफाइड माइंड है, कितने एबिलिटी हैं, इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सबके लिए समान नहीं होता है, जैसी जिसकी विचारधारा होती है वैसा होता है। सो विथ ए calm and collected mind taken by the sages of holy vows dwelling in that hermitage, with them Vishwamitra and his 2 pupils stayed most comfortably on that site of the hermitage associated with the name of Kama, while the Vishwamitra is season of Kusha, the foremost of ascetics, whose mind is given to pity, and entertain the 2 charming princes with the delightful stories. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः समाप्त। Thus the end of Canto 23 in the Balakanda of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Now the Sarg 24.
24वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। देखिए, राम भगवान का पहला वध होगा ताड़का का वध। राम भगवान वध नहीं करना चाहते थे किसी स्त्री का हत्या, परंतु जब वो ताटका ऋषि को परेशान कर रही थी तब उसका वध जरूरी हो गया था। तो पहला वध जो राम भगवान ने किया है वो ताड़का का वध किया है। ताड़का नाम की राक्षसी थी, उसका वध राम और लक्ष्मण जी ने किया है। हाँ नहीं, वो शूर्पणखा थी, ये ताड़का है। एन अकाउंट ऑफ द सरयू गिवन बाय द विश्वामित्र, सम फैक्ट्स रिलेटिंग टू द ऑग्रेस ताटका रिवेल्ड एंड hints give about killing her। उसको कैसे मारना है, क्यों मारना है, ये सब हिंट देते हैं विश्वामित्र कि इसका आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक इस तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, हे महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए जिससे विलंब न हो। प्लेसिंग इन द forefront Vishwamitra, who had just finished his daily routine of the morning devotions, the two brothers who were capable of subduing their enemies arrived at the bank of the river Ganga, getting an excellent boat of fairy dam across all the high-souled sages of the Tarvows mentioned above. Forth with the spoke to Vishwamitra as follow, he board you the boat followed by the king's son, and having crossed the river proceeded on your journey at the auspicious moment. Let there be no loss of time। टाइम को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। टाइम का लॉस यानी मनी का लॉस। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ पावर, टाइम इज़ एवरीथिंग। तो उनके जो शिष्य हैं बोल रहे हैं, टाइम क्यों बिगाड़ रहे हैं, जल्दी से क्रॉस कीजिए, आपका यज्ञ खत्म कीजिए जिससे आपको सिद्धि प्राप्त हो सके। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा, कहकर उन महर्षियों की सराहना की। अरे वाह, क्या बात है। और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज़ है, क्यों, कहाँ से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा कर उनके भीतर जाग उठी। ये आवाज़ जो गड़गड़ाहट आ रही थी, दो नदियों के संगम स्थान पे कुछ आवाज़ आती है, खल 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 आवाज़ आती है। सेइंग आमीन एंड रिटर्निंग द salutations of those seers assembled to see them off with honor, Vishwamitra, accompanied by the two brothers, began to cross the river Ganga, hastening to meet the oceans. Reaching the middle of the stream, जब वो बीच में पहुँचे, नदी के बीच में, the highly glorious Ram along with Lakshman, the younger of the two, distinctly heard on the river noise enhanced by the agitation caused by the striking of waves against one another। एक दूसरे के जो टकराते हैं ना, पानी की धाराएं, बड़ी बड़ी धाराएं, तो उससे आवाज़ आती है। जैसे आप कोई दो चीज़ को टकराते, हम ऐसे ताली लगाते तो आवाज़ आती है ना, ऐसे दो पानी की धाराएं बड़ी होती है ना, उसकी आवाज़ निकलती है।
यस, आती है आवाज़। अब नदी के और हम आपको ले जाएंगे नदी के संगम पे, तब आप सुनना, खल 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 आवाज़ आती है। तो वहाँ जो आवाज़ आ रही थी, स्ट्राइकिंग द टू वेव्स अगेंस्ट वन अनदर एंड फेल्ट एंगर टू नो द डिफाइन कॉज ऑफ द नॉइज in mind stream of Sri Ram presently question in the following words, विश्वामित्र foremost of hermits। उनको ये प्रश्न हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये क्या आवाज़ है। तब श्री राम ने नदी के मध्य मार्ग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ कैसी तुमुल तुमुल ध्वनि क्यों आ रही है। श्री रामचंद्र जी के वचन से इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई है। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उन्हें महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण कहा। नरश्रेष्ठ राम, कौशल कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है, उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया है। इस मन के द्वारा प्रकट होने से उसका नाम मानसरोवर यानी ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ, संकल्प से उन मन में संकल्प किया और मन से इसका नाम मानस सरोवर है। मान सरोवर बोलते हैं, अभी जो चाइना ने पढ़ा लिया है हमारे से, मानस सरोवर बोलते उसको, मान सरोवर। कुछ भी हो सकता है, हम अपने मानसिक शक्ति से कुछ भी बना सकते हैं। उस सरोवर के से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सट कर बहती है। ब्रह्म रस से निकलने के कारण वह पवित्र सरयू नाम से, देखिए सरयू नाम कैसे पड़ा, ब्रह्म रस से निकलने से, ब्रह्म रस से सरयू, रस से निकली हुई, ब्रह्म रस से, ब्रह्मा जी के रस से, वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी से मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज़ आ रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। रस यानी जो कैरी का रस होता है, आम का रस होता है, उसका रस बोलते हैं। तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतर कर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु कुलनंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्य के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती हैं। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब और फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। What is the cause of the tumultuous noise ostensibly proceeding from a volume of water striking one against another? Hearing the inquiry of Sri Ram, marked with the curiosity, the sage, whose mind is the given to pity, stated as follows, define the cause of the noise. There exists, O Ram, of Mount Kailas, a great lake created by Brahma, the creator, with his mind. Hence it is known by the name of Manasa, born of the mind. मन से उत्पन्न हुआ है, इसे मानस सरोवर बोलते हैं. Oh tiger upon man, a river named Sarayu, so called because it is has the source in the lake. Sarso yoti yati, source in a lake. It has its source in a lake is a Sarayu. Sarso yoti or yati, and hollow, and in that it has flowed from a lake created by Brahma, emanated from that lake. It encircles Ayodhya on the all sides except the south.
This sound, which has no parallel, proceeds from the violent commotion caused by the onrush of the water, even as rush to meet the Jhanvi Ganga, so called because it was drunk off by the sages Jhanu. इसको उसको जानवी भी बोलते हैं, गंगा भी बोलते हैं, बिकॉज इट वॉज ड्रंक ऑफ बाय द सेज जहनु. ये जो एक ऋषि थे उन्होंने उसको पी लिया था पूरा. उस सेक्रीफाइजल ग्राउंडेस वेयर इंडेटेड बाई इट एंड वॉज लेटर रिलीज, पर उन्होंने छोड़ दिया था उसको. बाय हिज थ्रू हिज ईयर्स, उसके अपने कान से उसको छोड़ा था. ऑफर सैल्यूटेशन टू द टू रिवर्स वेयर दे मीट विथ अ concentrated mind. O Ram, offering salutations to the two streams, unite with the another, and reaching the southern bank of the Ganga, the two brothers exponentially pious as they were proceeded on their onward journey with the quick passes. Along with Vishwamitra beholding a foremost वो अच्छा नहीं है ना, foremost of the terrible aspect and the unfrequented by man, Sri Ram, O son of king, the foremost of man, a season of Ikshvaku, questioned as follow. Vishwamitra is well among sages. Oh, this forest is difficult to assess. It is the swan with the crickets and the infested by the fire fierce beasts यानी of prey and vultures raising harsh noise, and various other kinds of birds uttering fierce cries. सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी उस जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे. धव यानी घोड़ा, अश्वकर्ण यानी अनेक प्रकार के साल, वृक्ष, ककुभ, अर्जुन, बेल, तिंदुक, तेंदु, पाटल, पाडर तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन है. इसका क्या नाम है? तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे वत्स ककुत्स कुलनंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो. With could possibly be this fearful forest graced with lions, tigers and boars, as well as with the elephant, and thickly set with dhavas. Sorry. Ashwakarnas, Kakumbhas, Arjun, Bilvas, Tindukas, Patalas and the Jujubis, the great sage Vishwamitra possessed as he was exponentially glory, replied to him as follows. तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे वत्स, हे वत्स, ककुत्स कुलनंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो. नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह दो समृद्धशाली जनपद थे. मलद और करुष, ये दोनों देश देवताओं के प्रभाव से प्रयत्न से निर्मित हुए थे. राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से विलिप्त हो गए थे, यानी मिट्टी वाले हो गए थे. शुदा ने भी उन्हें धर दबाया था और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई थी. तब देवताओं और तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया था तथा उनके मल और कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया था.
इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्ववत निर्मल निष्करूप क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया कि ये दोनों जनपद लोक में मलद और कुरुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई इस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। Here, O darling of the being of whom this forest belong, O Ram, here on this land, O dwell among men, there existed in the former days two prosperous kingdoms, the Malada and the, उसका नाम देखिए हिंदी में क्या दिया है, मलद और करुष, named by the brought into existence by the effort of gods in the ancient times when the dome Vritrasur was killed in the battle by the Indra. The scene of killing a Brahmana laid hold of Indra, distinguished by the 1,000 eyes, who was accordingly overcome with the impurity and hunger, यानी मल और भूख दोनों लगी थी। इम्प्योरिटी यानी मल यानी कादव वाले हो गए थे, हंगर यानी क्षुधा हो थे। द गॉड्स एंड द ऋषि रीच इन द अकेसीस बाथड द अफोरसाइड इंद्र, इंद्र को हजारों जल गंगा के जल से नहलाया। Impure as he was through seen with the azure full of water of the holy Ganga, further concerted by the utterance of the scared text and wash of his impurity, thereby deposing the impurity as well as pangs of hunger fallen off from the body of the great Indra. In this tract of the land, the gods derived joy thereby, and Indra, for his part, was completely rid of his impurity and hunger. Highly pleased at this, Indra thereupon confirmed the following sublime boon on the two tracts of the land. These two scratch of the land, these have embedded by impurity, will grow prosperous and will be known in the world by the name of Malada and Karusha. Seeing that honor confirmed on this tract of land by the wise Indra, the gods for their part and applauded the celebrated Indra, the chaser of the Dyompaka in the world. Well done, God, for the considerable length of time, O saver of flows, these two territories, Malada and Karusha, then see forward, continue to be prosperous and rich in wealth and food grains. Now, when some time the elapsed since the aforesaid incident that appeared in this region, so the tradition goes, a Yaksha woman Tatka by name, capable of assuming any form at will and possessing at very time of the her birth, the might of the 1,000 elephants, who is the wife of the wise Sunda, may good betted by, and whose son the ogre Marich उसका पुत्र, possess the strength of Indra and is endowed with the round arms, a large head, an enormous mouth, and a
colossal body, the mighty Rakshasa, who has a terrible form, is a perennial source of the terror of the people, while the Tatka, who conduct herself like a wicked woman, constantly ravages these two principalities of Malada and Karusha, O she son of Raghu. As such, she lives in an area of 12 miles, obstructing the road. बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई इस देश की वह पूजा देखकर देवताओं और पाक शासकों को बारंबार साधुवाद दिया। शत्रुदमन, मलद और कुरुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली, धन दाने से संपन्न और सुखी रहे। कुछ काल के अंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती थी। उसका नाम ताटका है। यह बुद्धिमान सुंदर नामक दैत्य की पत्नी है। सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, इस ताटका का ही पुत्र है। देखिए, मारीच जब सीता जी का हरण होता है, तब मारीच वो है हरण का रूप धारण करता है। हाँ, तो ये ताटका का पुत्र है मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है। उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल हैं, मस्तक बहुत बड़ा है, मुंह फैला हुआ है और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता है। टेररिज्म, जो अभी भी टेररिज्म कश्मीर में है, तो ऐसे राक्षस लोग टेररिज्म कहलाते हैं। टेरर फैलाते हैं, उसको राक्षस बोलते हैं। उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल है, मस्तक बड़ा है, मुंह फैला हुआ है, शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता है, टेरर फैलाता है। हे रघुनंदन, वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और कुरुष इन दोनों जनपदों को विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती हैं। अतः हम लोग जिस और ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर उस दुराचारिणी को मार डालो। For this very reason, let us proceed in the quarter where exists the forest of Tatka, relying on the might of your own arms. Make short work of this ogress of wicked conduct. और मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है, तो भी इस समय कोई यहाँ आ जा नहीं सकता है। राम उस असह्य एवं भयानक अयक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, इस सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। उस यक्षिणी ने इस ही सारे देश को उजाड़ दिया है, और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। अंडर माई ऑर्डर मेक दिस realm throneless as before. None is really speaking able to visit this land, through so holy and beautiful, terminated as it is by the terrible Yaksha woman who has grown so intolerable. उसका अब टॉलरेशन नहीं हो सकता, intolerable है। In this way has been told by me everything that you ask. मैंने सब कुछ बता दिया तुमको। With how this forest looks so fearful, how the entire region has been laid waste by the Yaksha woman, and how she does not desist from her nefarious activities even to this day. अपने क्रूर कर्म यानी कि नेफोरियस एक्टिविटी, क्रूर कर्म से उसने इस सारा प्रदेश को उजाड़ दिया है।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्विशः सर्गः समाप्त. Thus the end Canto 24 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम. जय श्री राम. जय श्री राम. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Sri Ram.